not buy Urdu books. What's going on? It is you should not do like this. All have to buy Urdu books. Otherwise, today father told me in 2 days it will be sent back. Got it? Today is Monday. Sir, can you So please Tuesday. tell again first chapter? Please tell us what? The first chapter again. First chapter is on YouTube. I have already uploaded on YouTube. See from there. Not down from there. Everything is there on YouTube. First chapter. I have completely given. One homework was given on page number 7. I hope many of you have done. Patta patte tara tare gulshan. Gulshan gulshan ho. Phoolo phool phoolo. Cheese or cheeseं. Now I will be doing second chapter today. Please pay attention. All of you be with me. Second chapter, please open. And those who don't have, see with me, I will share on screen. सबक नंबर 2, हम और हमारे घर. How many still not buy book? Show your hand so that I can note down your names. You know, your 4 chapters are coming in Urdu, all of you. So 4 chapters means you have to be thorough. You should do fast your work in Urdu. Although I will be telling you which important exercise you have to focus on, but you should be very familiar with your books and with your lessons. Okay. All can see this on their screen. Are you able to see this chapter? Yes, sir. Yes, sir. Then I'm just reducing some noise. Atmosphere is little noisy so that I will read calmly and all can understand. For that, I'll take a corner where there will be less sound. Here now. My voice is audible to all of you now. Sir, voice on Yes, the sir. video also. Voice quality is better now. Yes, sir. Better. I'm reading about the chapter now. Please put your finger with me so that you all can read carefully. I know many of you are not doing reading practice. I told you in your homework you have to do more reading practice so that you can read. This time Urdu you have to give time. If you are reading, then it will be better. Sabak do. Hum aur hamare ghar, we and our houses. First of all, hard words are here. Number 1, सीन है के साथ रे मिला हुआ है, दाल है और छोटी है. ये हुआ सर्दी. इस तरह बे, अलिफ, रे और शीन बारिश. अलिफ मद आ, रे अलिफ और मीम आराम. काफ है, चे है और बड़ी ये है कच्चे. जिस तरह हिज्जे करके हम पढ़ रहे हैं उसी तरह सारे बच्चों को प्रैक्टिस करनी है ताकि वो इस तरह पढ़ सके. पे है, काफ है और बड़ी ये है, मिलाकर होते हैं पक्के. अब पढ़ रहे हैं लेसन. सुनिए. जिंदगी. जाल है, नून है, दाल है, गाफ है, छोटी है. जिंदगी. गाफ है, जे है, रे है और अलिफ है. उसके बाद फिर रे है, फिर नून है, बड़ी ये है. मिलाकर हो गया गुजारने. गुजारने. काफ है, बड़ी ये है के,
लाम है और बड़ी ये मिलाकर हुआ लिए, गुजारने के लिए, इसमें हमजा भी है, गुजारने के लिए हर आदमी, हर लिखा हुआ है छोटा है और रे मिला दिया गया है तो ये हर हो गया, हर आदमी, अलिफ मद आ दाल और मीम छोटी ये है तो इस तरह आदमी लिखा जाता है। हर आदमी को घर चाहिए, चाहिए कैसे लिखा हुआ है, 6 अलिफ है और इसमें फिर ऊपर हमजा अंडरस्टूड है और ये चाहिए, ठीक है। घर हमको सर्दी से बचाता है, आंधी बारिश तूफान और आसमान में चमकने वाली बिजली से बचाता है। जो वर्ड हार्ड लगेगा आप उसकी हिज्जे जैसे मैंने आपको बताई है इस तरह कर सकते हैं। घर ही जंगली जानवरों, डाकुओं और डाकुओं चोरों वगैरह से हमारी हिफाजत करता है। उंगली रखते रहेंगे जहां पर मैं आपको गाइड करता रहूंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ताकि बाद में आप जूम इन कर कर आराम से इसको पढ़ लें सब बच्चे। घर में आकर हमें सुकून और आराम मिलता है और घर में हम अपनी जरूरत की हर चीज हिफाजत से रख सकते हैं। घर मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं, कच्चे, पक्के, छोटे, बड़े, आलीशान महलों जैसे और घास फूस के। तो हर तरह के घर होते हैं आप जानते हैं। ईंट, अलिफ है, ये है, नून है और ये टे है, मिलाकर होते हैं ईंट। ईंट सीमेंट हो गया, सीन है, मीम है, देखो हार्ड वर्ड है, ध्यान से उसकी स्पेलिंग को आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सीमेंट में सीन आया है, ये आया है, मीम आया है, नून आया है, नून के बाद फिर ये पढ़ा जा रहा है और टे टमाटर पढ़ा जा रहा है, इसलिए हो गया सीमेंट। ईंट, सीमेंट, रेत, लोहे, कंकड़ और पत्थर के बने हुए घर पक्के और मजबूत होते हैं। मिट्टी के बने हुए घर कच्चे और कमजोर होते हैं। नेक्स्ट पेपर। यहाँ पिक्चर में दे रखे हैं, आपने देखे पीछे। घरों की छतें, ये छतें हैं, देखो कैसे लिखा हुआ है, 6 में हिंदू चश्मी मिला देते हैं तो 6 बन जाता है, ठीक है। फिर जाता है छत और फिर उसमें ते में ये और नून गुना जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है छतें। घरों की छतें भी मुख्तलिफ चीजों जैसे घास फूस, पत्तों, लकड़ी के तख्त, लकड़ी के तख्तों, टीन या सीमेंट, ये टे और नीन टीन हो जाएगा, टिन या सीमेंट की चादरों, ठीक है, टिन की या सीमेंट की चादरों से, या फिर काफ है हिदुचमी, खपरेल पढ़ा जा रहा है, ये इससे पढ़ेंगे खपरेल। खपरेल क्या होती है, खपरेल पुराल को कहते हैं, ठीक है। काफ है हिदुचमी मिलाकर खे हुआ और फिर टे लगाया उसमें खप, रे जोड़ दिया खप, आगे ये और लाम मिलाकर खपरेल हो गया, ठीक है। इस तरह से इसकी स्पेलिंग है, खपरेल की छतें रिपीट कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। खपरेल की छतें, ठीक है, सबको आ रही मेरी आवाज? माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? घास फूस और खपरेल की छतें ठंडी रहती हैं। तो ये कह रहे हैं घास फूस और खपरेल यानी पुराल से जो बनी हुई छतें होती हैं वो ठंडी रहती हैं, वो तपती नहीं है ज्यादा, उनके लिए बताया गया। घर में रोशनदान जरूर होना चाहिए। जालीदार खिड़कियां और दरवाजे भी हों ताकि घर में हर वक्त ताजा हवा आती रहे, खराब और गर्म हवा बाहर निकलती रहे। तो ये प्रिंसिपल है ऑफ कन्वेंशनल ऑफ गैसेस, आप पढ़ चुके हैं 8th क्लास की फिजिक्स बुक में भी आपने पढ़ा है। वेंटिलेटर्स होने चाहिए, विंडोज होनी चाहिए और डोर्स होनी चाहिए, तो वो
आपके कमरे को कूल रखते हैं। हर वक्त ताज़ा हवा आती रहे, खराब और गर्म हवा बाहर निकलती रहे। ठीक है, उसके बाद ये सेमीकोलन आया है। फिर देखिए, ते है, नून है और दाल है। तंदुरुस्ती के लिए, क्योंकि ताज़ा हवा बहुत ज़रूरी है, इसलिए घर में ताज़ी हवा आनी चाहिए। अच्छी सेहत के लिए घर की सफाई निहायत ज़रूरी है। निहायत मतलब बहुत ज़रूरी। ठीक है, हमें, काफ है, वाव है, कीड़े है, अलिफ है, हो गया कूड़ा। हमें कूड़ा करकट हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। घर में एक ढकी हुई नाली का होना भी बहुत जरूरी है, जिसके जरिए कचरे का जिसके जरिए घर का गंदा पानी बाहर निकलता रहे। एक अच्छा पखाना और पेशाब घर भी होना चाहिए। ये टॉयलेट, वॉशरूम और बाथरूम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो बता रहे हैं जैसे आज सब घर में टॉयलेट जरूरी हैं, इसी तरह गांव में भी सब जगह टॉयलेट घर के अंदर ही बनने चाहिए, ताकि उनमें गंदगी खेतों पर ना फैले। ठीक है, उसके लिए इन्होंने कहा है घर में हर वक्त बदबू भी ना आए। तो ये कह रहे हैं एक अच्छा पेशाब घर होना चाहिए। खराब गंदगी पानी से, अगर यहाँ पर ये वॉशरूम और टॉयलेट अच्छा नहीं होगा, उसके गंदे पानी से बहुत सारी बीमारी के जरासीम है। ये जीम है, रे है, अलिफ है, सीन है और ये मीम है। जरासीम, फिर है मीम, काफ के साथ है और अलिफ, और ये अलिफ और नून गुन्ना है, मिलाकर हो जाता है मक्खी के जरासीम। मक्खियां और मच्छर पैदा होते हैं, घर में हर वक्त बदबू रहती है, तो उनकी सफाई का बहुत जरूरी है। टॉयलेट, वॉशरूम्स वगैरह घर के साथ धुलते रहने चाहिए, और वो साफ सुथरे रहेंगे तो घर में मक्खियां नहीं आएंगी, जरासीम नहीं आएंगे। जरासीम छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, तो उनसे हमें बहुत हिफाजत रखनी है अपने घर की। उसके बारे में यहाँ ताकीद की गई। ठीक है, होते हैं घर में रोजाना झाड़ू लगाना चाहिए, झाड़ू लगानी चाहिए ताकि सफाई सुथराई रहे। अगर घर का फर्श कंक्रीट का हो तो इसे धोकर आसानी से साफ किया जा सकता है। अगर फर्श मिट्टी का हो तब भी उसको लेप कर साफ रखना चाहिए। आपने देखा है गांव में कंक्रीट के फर्श कम होते हैं, वहां मिट्टियों के फर्श होते हैं, तो वहां पर भी वो इतनी अच्छी से लेपा पुताई करते हैं। मिट्टी से नई मिट्टी होती है, या फिर उसमें खाद या गोबर मिलाकर वो कर देते हैं, तो उससे बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं। ठीक है, इस तरह गाँव में भी और शहरों में भी सफाई का होना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं, देखिए, बावर्ची खाना यानी किचन। बावर्ची खाना का धुआं निकलने का इंतजाम होना चाहिए। अगर बावर्ची खाना यानी किचन का धुआं नहीं निकल पाता तो घर अच्छा नहीं होता है, तो उसका इंतजाम होना चाहिए। धुएं से आंखें खराब होने का डर रहता है, इसलिए हमें अपने घर को हर तरह की गंदगी से बचाकर साफ रखना चाहिए, ताकि जिंदगी आराम से गुजर सके। देखिए, हमने आपके लिए से पूरा लेसन पढ़ दिया है। इसी तरह आप लोगों को भी हिजे कर इस पूरे लेसन को पढ़ना है, और जो हार्ड वर्ड है उनको समझना है। वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी लेसन में कोई बात आपको समझ नहीं आई, कोई वर्ड समझ नहीं आया और वो वर्ड मीनिंग में नहीं होगा, तो हम वर्ड मीनिंग के बाद आपसे पूछेंगे। देखिए, सर्दी, जाड़ा मतलब विंटर को कहते हैं। आंधी तूफान स्टॉर्म्स को कहते हैं। हिफाजत, बचाव को कहते हैं। बचाव यानी प्रोटेक्शन, सेफ्टी को कहते हैं। मुख्तलिफ यानी डिफरेंट कहते हैं।
आलीशान यानी कि ह्यूज कहते हैं, छत रूफ होती है, रोशनदान वेंटिलेटर होता है, ताज़ा मतलब फ्रेश होता है, सेहत हेल्थ होती है, और निहायत होता है टू मच। कूड़ा करकट रबिश होता है, और फिर टॉयलेट को बताया है इन्होंने, फिर जरासीम होते हैं उनको बताया है, निहायत टू मच बताया, कूड़ा करकट रबिश बताया है, और फिर इन्होंने बदबू को बैड स्मेल बताया है, बावर्ची खाने को किचन बताया है, और धुएं को स्मोक बताया है, आसानी यानी ईजली, गंदगी यानी डर्टीनेस, साफ यानी कि साफ यानी कि क्लीन बताया है, और हमेशा मतलब ऑलवेज बताया है। अब ये एक बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है बीच बीच में, मैं देखता हूँ कौन है। Sir, video Aska not is, visible. Aska is present there. Yes, sir. Azka No. लड़की ये प्रेजेंट नहीं है ना, ये बीच में डिस्टरबेंस क्यों कर रही है, कॉल क्यों कर रही है मुझे बच्ची? Why she is calling me again? Aska is present there now. Aska not present. Yes, Shoaib Khan, any problem, beta? Your hand is up. No, sir. Urdu book is not here. But I'm showing you on the screen now. The next size I'm showing you doing notebook. Urdu book Yes. all have to buy, otherwise you yourself will be responsible. That bookkeeper, shopkeeper told us in this week only they will return. They have all brought 70 copies, and if you will not take, then you will never get. Sir, tomorrow I will buy. Please surely buy it. Now open page number 10. Those who have book, those who don't have, please see on the screen. I will share with you. Okay, sir. Aska is present there. Not present. देखिए सही मुतबादिल से जुमले चुनकर सही मुतबादिल से जुमला मुकम्मल कीजिए और का निशान लगाइए। अच्छी सेहत के लिए घर की गंदगी जरूरी है, रौनक जरूरी है, ये सफाई जरूरी है। थर्ड ऑप्शन सही है, सफाई जरूरी है। सबने निशान लगाया थर्ड ऑप्शन पर? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन, जिंदगी गुजारने के लिए हर आदमी को क्या चाहिए? Third चाहिए. जस्ट वेट। Sir, problem. Afshan? My voice is audible now to all of you. Yes, sir.
Okay, please see the page now. And please, nobody should call me during the class. If they will call me, I will block their numbers. Like I have blocked today Aska, she will never be able to disturb me. The student, those who are disturbing in between, they will be never able to talk to me. See now, जिंदगी गुजारने के लिए हर एक आदमी को क्या चाहिए? घर घर चाहिए। घर चाहिए, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। पहला घर ऑप्शन चाहिए, जानवर घर। चाहिए गलत है, सेकंड ऑप्शन घर चाहिए सही है। देन मेवा चाहिए, ये भी गलत है। घर में रोशनदान ना जरूर हो होना तो, चाहिए। हाँ जरूर होने चाहिए। पहला ऑप्शन है ना हो तो कोई बात नहीं, गलत है ये। जरूर होना चाहिए सेकंड ऑप्शन सही है। दोनों ठीक हैं, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन सही है बस। तंदुरुस्ती के लिए ताजा हवा जरूरी है। ताजा हवा जरूरी है, जरूरी नहीं है और कुछ अहमियत रखती है। ताजा हवा जरूरी है, जिंदगी तंदुरुस्ती के लिए ताजा हवा बहुत जरूरी है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है, उस पर निशान लगाना है। ऑप्शन बी आ सकते हैं आपके यूनिट टेस्ट में भी। 9 दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। इसमें गुलशन में घर में रोशनदान होना क्यों जरूरी है? ताकि धुआं बाहर जा सके। और कोई बात, ताजी हवा अंदर आ सके, ये भी हो सकता है। यस सर। सही है। देखते हैं, देखिए पेज नंबर आप खोलेंगे, आपने पीछे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। पेज नंबर 9 पर ये आया है रोशनदान के बारे में। घर में रोशनदान जरूर होना चाहिए, जालीदार खिड़कियां और दरवाजे भी हों ताकि घर में हर वक्त ताज़ा हवा आती रहे, खराब और गर्म हवा बाहर निकलती रहे। मेन बात तो ये है, घर में रोशनदान होना क्यों ज़रूरी है, पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे। घर में रोशनदान होना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए आप सब लिख सकते हैं। देखिए अलिफ है, सीन है, सीन के साथ लाम मिलाएंगे, फिर एक शोशा और बनाएंगे हमजा का और बड़िए बनाएंगे। घर में रोशनदान होना इसलिए जरूरी है, फिर आइए ताकि। ताकि लिखा हुआ है, देखिए पेज नंबर 9 पर जब आप खोलेंगे, खराब ताकि नहीं लिखा हुआ है। लाइन नंबर है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन है। ताकि खराब और गर्म हवा बाहर निकलती रहे, नहीं ताकि लिखा हुआ है, देखिए लाइन नंबर 4 में ताकि लिखा हुआ है, वहां से ले लीजिए। फिर बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन में से लेंगे। घर में रोशनदान होना इसलिए जरूरी है, इसलिए कि स्पेलिंग बता दी है आपको, अलिफ आएगा, सीन लाम हमजा और बड़िए आएगी, इसलिए जरूरी है। फिर आप आएंगे पेज नंबर 9 पर। जब आप पेज नंबर 9 को खोलेंगे तो इसमें आपको लाइन नंबर 4 मिलेगी। लाइन नंबर 4 में उसका लास्ट पोर्शन आप देखिए, ते अलिफ कॉमे के बाद लिखा हुआ है ताकि घर में हर वक्त ताज़ा हवा आती रहे, खराब और गर्म हवा बाहर निकलती रहे। ये आंसर है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? सर प्लीज टेल स्पेलिंग इसलिए अगेन। देखिए इसलिए कि स्पेलिंग मैं स्क्रीन पर ही लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए इसमें। आई विल राइट ऑन द स्क्रीन सो दैट यू विल बी एबल टू सी। ओके सर। ऑल कैन सी, आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन, प्लीज सी। इसलिए कैसे लिखा जाएगा? अलिफ आएगा, सीन आएगा, लाम आएगा, हमजा आएगा और बड़ी ये आएगा, ठीक है। हमजा फिर यहाँ लगा दीजिए, और ये के 2 नुक्ते लगा दीजिए, ठीक है।
सबने देखा, इसलिए कैसे लिखा जाएगा? Yes, sir. Please see on your screen and you can write it. इसलिए इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसलिए लिखने के बाद फिर क्वेश्चन में से लेंगे, इसलिए जरूरी है, फिर पीछे बुक में ताकि मिल गया आपको, ताकि घर में हर वक्त ताज़ा हवा आती रहे और ख़राब और गर्म हवा बाहर निकलती रहे, ठीक है। Okay, अब sir. सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, घर से हमें कौन कौन से फायदे हैं? घर से हमें कौन कौन से फायदे हैं? घर से हमें कौन कौन से फायदे हैं, ये देखिए दिखा है 8 पेज नंबर पर। जब आप खोलोगे घर हमको सर्दी से बचाता है, आंधी बारिश तूफान पहली लाइन में ही है, और आसमान में चमकने वाली बिजली से बचाता है। कितना बहुत है। फिर आगे भी है, घर जंगली जानवरों, डाकुओं, चोरों वगैरह से हमारी हिफाजत करता है। ये भी अच्छा है, लेकिन छोटा आंसर लिखवा रहे हैं। घर से हमें कौन कौन से फायदे हैं, तो हम इतना लिख सकते हैं, घर हमें सर्दी से बचाता है, आंधी बारिश तूफान और आसमान में चमकने वाली बिजली से बचाता है। इतना आंसर लिख सकते हैं हम। सबको मिल गया आंसर सेकंड? Yes, sir. एक बार यहाँ भी निशान लगा के दिखा रहे हैं, देखिए, यहाँ से शुरू है, यहाँ पर खत्म है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। घर की छतें किन किन चीजों से बनाई जाती हैं? छतों के बारे में देखिए हमने पढ़ा है, छतें किससे बनाई जाती हैं। घर की छतें 9 पेज नंबर पे आएगा। घास, फूस, पत्तों, लकड़ी, तख्तों, टिन या सीमेंट की चादरों, खपरेल और कंकड़ियां, ईंट वगैरह की बनाई जाती हैं। आपको आप देख सकते हैं, पहली लाइन में दे रखा है पेज नंबर 9 पर। पहले क्वेश्चन में से ले लीजिए, घर की छतें, फिर जहां कॉलन लगा हुआ है, कॉलन के बाद देखिए घास वर्ड लिखा हुआ है। घास, फूस, पत्तों, लकड़ी, तख्तों, टिन, सीमेंट की चादरों, खपरेल, कंकड़ियां, ईंट वगैरह की बनाई जाती हैं। यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से 3 आंसर हो गए। सबको क्लियर हुए तीनों के आंसर? Yes, sir. अब आ रहे हैं आंसर नंबर। क्वेश्चन नंबर दाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दाल से हमें पता लगता है घर में सफाई करना क्यों जरूरी है। ये पूछ रहे हैं घर में सफाई करना क्यों जरूरी है। ये भी लाइन 9 पेज पर हमने पढ़ा है, देखिए। लाइन नंबर 6 में आप देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लाइन। अच्छी सेहत के लिए घर की सफाई निहायत जरूरी है। तो आप लिख सकते हैं, घर में सफाई करना क्यों जरूरी है। घर में सफाई करना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये अच्छी सेहत के लिए घर में सफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छी सेहत के लिए घर में सफाई करना बहुत जरूरी है। अच्छी सेहत आपको स्पेलिंग मिल जाएगी पेज नंबर 9 पर, लाइन नंबर 6 में। गॉट इट? किसी को नहीं मिली तो बताइए, सबको मिल गई? अच्छी सेहत के लिए घर में सफाई करना जरूरी है। अप टू पेज नंबर 10 सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं।
अब देखिए पेज नंबर 11 पर आइए। दर्जिल अल्फाज की जमा लिखनी है, जमा यानी प्लूरल होता है। एक्सरसाइज आपके सामने है। आपकी स्क्रीन पर ये एक्सरसाइज है, देख रहे हैं आप सब बच्चे? देखिए यस सर। ये लिखा है दरवाजा, दरवाजा का दरवाजे हो जाएगा, दाल यही रहेगी, रे यही रहेगा, वाव अलिफ भी रहेगा, जे के बाद बड़ी ये बन जाएगी, छोटा हा हट जाएगा। दरवाजा एक दरवाजे के लिए होता है, और जब बड़ी ये बन जाती है तो बहुत सारे दरवाजे को दरवाजे बोला जाता है। हवा, हवा हवाएं होता है तुम पे नजर आ रहा है। कि हवाएं लिख के दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप ध्यान दें। आपको पता लग जाएगा हवाएं कैसे लिखते हैं। ये हो गया हे और वाव, ठीक है, अलिफ हो गया, और इस तरह से हमजा बना के नून गुन्ना हो जाएगा, और ये के नुक्ते आ जाएंगे। हवा, हवाएं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें और इस तरह से हवाएं आप लिख सकते हैं। ऑल हैव डन। Yes, sir. फिर देखिए, फिर है जरसुमा लिखा है, जरसुमा। जरसुमा, एक जरासीम को जरसुमा कहते हैं, अगर बहुत सारे हो जाते हैं तो जरासीम कहते हैं। ये आपके लेसन में भी आया है, जरासीम वर्ड आया है, किस लाइन में आया है देखिए। जरासीम आपका 8th लाइन में आया है। पेज नंबर 9 पर आप जब खोलेंगे तो आपको जरासीम दिखेगा। सर वर्ड मीनिंग में भी है जरासीम। जी, वहां से भी लिख सकते हैं अगर जरासीम वहां पर भी है। देखिए सर्कल कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये जरासीम है, इसमें आप सब देख सकते हैं, ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जरासीम सबको लिखना आ गया। जरासीम के बाद हमारा नेक्स्ट है आंधी। आंधी, आंधियां होता है, आंधियां लिख सकते हैं सब। मैं आपकी स्क्रीन पर फिर लिख रहा हूं आंधियां, देखिए अलिफ मदा, ये आ गया, नून आएगा और दाल आएगा। थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूं, अलिफ मदा, नून, दाल, ए, ये, अलिफ और नून गुन्ना। आप सबको ये स्पेलिंग दिख रही है? इस तरह से आंधियां आप लिख सकते हैं, आंधी और आंधियां, ठीक है। जानवर, जानवरों का लिखा हुआ है लाइन नंबर 2 में, लेसन की शुरू में जब आपने देखा है तूफान आसमान घर में, जंगली जानवरों से, डाकुओं से, जब हमने ये लाइन पढ़ी है उसमें जानवरों की स्पेलिंग आई है। आप वहां से देखकर ये वाला आंसर लिख सकते हैं। ऑल गॉट इट? देखिए लिखा है जानवरों। मैंने सर्किल किया है स्क्रीन पर, आप यहां से देखकर जानवरों की स्पेलिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अल्फाज का इमला दुरुस्त करके लिखिए। ये आप होमवर्क में कर सकते हैं आराम से। इमला दुरुस्त करने का मतलब है आपको इनकी स्पेलिंग सही करनी है, ठीक है। लाइए मैं हाथों हाथ कर भी देता हूं ताकि आप लोगों का कम से कम 2 चैप्टर यूनिट टेस्ट में आ जाएंगे। 4 चैप्टर लिखे हुए हैं लेकिन 2 चैप्टर मुकम्मल तौर पे पूरे हो गए हैं, तो हम आपको एक पोएम जो हमने पहले पढ़ाई थी उसमें से भी आपको दे सकते हैं उसकी 4 लाइनें लिखने के लिए। तो वो पोएम जिनकी पूरी नहीं हुई है वो आज यूट्यूब पर देख लेंगे, मैंने यूट्यूब पर डाल दी थी वो पोएम भी,
और वो पोएम भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके 2 चैप्टर इस बुक में से आ रहे हैं और पहले एक पोएम जो कराई है वो भी आ रही है। Sir, that specimen poem. Yes, that for practice I have done 8 lines. 8 Sir, lines third only. and fourth chapter is not coming. Third and Sir, fourth chapter excuse me. cannot come because we cannot take revision. On Sir, 18 your excuse me. exam is, Yes, listening. Say fast. Your voice is not coming. Okay, you speak later. Sir? Let me see now. Yes, Manal, speak Sir, out. that specimen poem you have given will also come. Yes, That I of can give you. 26 lines. Those 26 lines. Not 26, only first 8 lines. Okay, sir. And sir, the poem which is given in our book, only 8 lines or much? Surely, full poem will come. From this book, full poem. First Okay, is Dua, na? This is Naat or Dua. Dua it is. So this Dua Okay, full will sir. come. That poem which I given Okay, additionally in sir. the beginning, that only 8 lines. As we are not able to complete now, so I will be giving you only 2 lessons to learn. Third and fourth chapter. Let's give in half yearly exams. Don't worry. Okay, sir. Thank you, sir. So prepare it. अल्फाज का इमला दुरुस्त करके लिखिए। ये आपको सबको आना चाहिए, जल्दी से देख लीजिए, वक्त ज्यादा निकल जाएगा। सुकून सीन से होगा, स्वाद से नहीं होगा। ये पीछे भी आया है। लाइन नंबर 3 में आप देख रहे हैं सुकून कैसे लिखा जाएगा। सब देखिए, सुकून की सही स्पेलिंग ये है, ठीक है। Yes, sir. इस तरह से सुकून पूरा हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड पे नजर डालें। सर्दी है। सर्दी भी आपका फर्स्ट आंसर, एक आंसर में आया है जो मैंने आंसर आपको लगवाया, आंसर नंबर 2 में सर्दी आया है और ये लेसन में भी आया है। ये रहा सर्दी। आई होप ऑल कैन सी। सर्दी की सही स्पेलिंग ये है। जो मैंने सर्किल किया आपकी स्क्रीन पर, सर्दी की सही स्पेलिंग ऐसे है, स्वाद से नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड तोय से दे रखा है, ये दे रखा है तोय है, नून है, दाल है। तंदुरुस्ती तोय से दे रखा है, जबकि तंदुरुस्ती तोय से नहीं होता है। तंदुरुस्ती दे रखा है आपका यहाँ पर। जब हमने हवा के बारे में पढ़ा था, सफाई के बारे में पढ़ा था, अच्छी सेहत के लिए सफाई निहायत जरूरी है, और तंदुरुस्ती एक जगह और आया है। देखिए, तंदुरुस्ती आया है इस पेज पर, पेज नंबर 9 जब आप देखेंगे तो इसमें ते से आया है तंदुरुस्ती। उसकी स्पेलिंग फोकस कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप सब यहाँ से इसका याद कर सकते हैं, ठीक है। तंदुरुस्ती की स्पेलिंग सब देख लीजिए। ते है, नून है, दाल है, रे है, सीन और ते और छोटी एक साथ मिला हुआ है, इस तरह तंदुरुस्ती होता है। फिर हिफाजत दे रखा है छोटे हे से, वो गलत है। सब ये आपके लेसन में आए, जब आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगे। हिफाजत आपका इसी पेज पर आया है 8 नंबर पर। जंगली जानवरों, डाकुओं, चोरों वगैरह से हमारी हिफाजत करता है घर। दिखा रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से। पेज नंबर 8 जब आपने खोला, यहाँ पर हिफाजत वर्ड आया है। आई होप ऑल गॉट इट नाउ। प्लीज राइट फ्रॉम हेयर। इस तरह हिफाजत लिखा जाता है।
हिफाजत के बाद है हमारा अगला वर्ड निहायत। निहायत भी हमने पढ़ा एक आंसर में, उसमें हमने लिखा नहीं था निहायत, लेकिन हमें निहायत लिखना आना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए सफाई निहायत जरूरी है, बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। ठीक है, वो लिखा था हमने। अपनी स्क्रीन पर देखिए, निहायत इस तरह से लिखा जाएगा। सबको दिखा? ये निहायत का वे है लिखने का। नून है, छोटा है उसके साथ अलिफ है और ये और ते है। निहायत के बाद हमारा अगला वर्ड है सफाई। सफाई स्वाद से होता है, उसी लाइन में है, देखिए सफाई, आप देख सकते हैं सफाई, ये सफाई है। ठीक है, सबको दिख रहा है सफाई भी। सफाई के बाद अगला वर्ड है साफ। जब सफाई स्वाद से होगा तो साफ भी स्वाद से होगा। साफ आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर है मच्छर। मच्छर भी आपका 9 पेज नंबर पर आया है, देखिए ये आगे। मच्छर पैदा नहीं होते, अगर गंदा हो तो मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर इन्होंने छोटा हे बना रखा है, जबकि हे दो चश्मी बनेगा। सब देखिए मच्छर इस तरह से लिखा हुआ है, मच्छर पैदा लिखा हुआ है, आप पैदा मत लिखना, मच्छर लिखना बस। ठीक है, मच्छर इस तरह से आपको लिखना है। ध्यान से अपनी बुक्स में देखेंगे, जिन्होंने अभी तक बुक्स नहीं ली हैं बुक्स ले लीजिए, नहीं तो वो बुक्स आपको फिर कभी नहीं मिल पाएंगी। फिर बाद में शिकायत आपने की तो हम नहीं सुनेंगे। ठीक है, बस यही बात के साथ लेसन पूरा हो गया। दर्ज झेल जुमलों को इस्तेमाल कीजिए, ये होमवर्क में कर लीजिएगा। आपको सेंटेंस बनाने हैं, इनसे सेंटेंस आप बना लेंगे। कवायद ज़बान आपका नहीं आएगा। अगले पेज नंबर 12 पर कवायद ज़बान है, वो आपका टेस्ट में नहीं आएगा। पेज नंबर 11 तक आपका आएगा यूनिट टेस्ट में। छत से आप सब सेंटेंस बना सकते हैं, हिफाजत से ही बना सकते हैं, रोशनदान से ही बना सकते हैं, आंधी से, आंखों से, आराम से। ये आपको खुद सेंटेंस बनाने हैं और फिर आपका टेस्ट हो जाएगा। ऑल अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा पीरियड लंबा कर दिया, लेकिन सिलेबस जितना करा दिया आज तक उतना ही आएगा। इसकी तैयारी अच्छे से करें और बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, Okay. 18 स्टूडेंट्स आर देयर। ये 18 के 18 बुक्स ले लीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए सब बुक्स ले लें। नाउ हैंग अप द कॉल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। दिस वीडियो आई विल पुट ऑन Thank you, sir. YouTube. Thank you, sir. Thank From you, there sir. also your friends can see. Okay, Thank you, sir. welcome. 12 बजे होगी 11:55